पैसे भी नहीं, अभी पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए, and they are so enthusiastically. But they are very optimistic. It will be done. देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद अब ऐसा हो रहा है कि we are facing problem in opening up of our own accounts and the UGC is asking ले लो यार पैसा ले लो. This is happening after a lot of years, you know. Good to see it. Good to have a feel like that. नहीं चलो ठीक है, अभी हमें उन्होंने बोला कि दे आर गिविंग 7 lakhs और समथिंग 6.5 लाख इसके लिए. दे हैव ओनली सेंट अस द सैंक्शन लेटर, बट इनका एमयू का तो आ भी गया, हमारा तो आया नहीं. एंड बिकॉज आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम फैजा मैम एंड शी वाज आस्किंग कि मैम डिड यू रिसीव द ग्रांट. आई सेड नहीं अभी तो मिला नहीं है, पर मतलब मुझे आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि आ गया है. तो उसने बोला नहीं जी अभी तो लेटर ही आया. मैंने अकाउंटेंट से पूछा, बोले अभी तो लेटर आया है. So she was asking, madam, they have not given us any guidelines, you know, as to how to spend this money. मैंने कहा वो तो जी मुझे भी नहीं पता how to spend this money. साड़ी खरीद लो जाके. साड़ी थोड़ी खरीद लो, कुछ और क्या करो. कुछ तो दिया नहीं है. बोल रहे थे कि यदि आपको 1500 देने हैं तो 7 लाख तो बहुत हैं, आपके तो पूरे साल भर के प्रोग्राम चल जाएंगे. उसमें भी ना ये जो इसका भी NEP का भी बड़ा पैसे गड़बड़ बताए हैं उसमें. ठीक, यदि उसमें 5000 के हिसाब से देंगे तो उतने पैसे ही नहीं दिए इन्होंने, तो पता नहीं क्या है, तो पता नहीं. देखिए मुझे लगता है these anomalies will be removed, क्योंकि वो हर बार ही होता है. ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम पॉइंट आउट करते हैं, फिर वो करेक्शंस होती हैं, फिर दोबारा आती हैं. That's every time process. This will also happen this time. अच्छा तो जो है स्टार्ट करें. आप तो स्टार्ट कर दीजिए. हाँ जी, 1 मिनट, मुझे एक चीज और पूछें. आप वो करें, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ. हाँ जी. So good afternoon, friends, and welcome to the today's sessions and in this NEP on the Sensitization and Awareness Program of NEP 2020 on this virtual platform of MMTTC Bhagat Singh Mahila Vishwavidyalaya. For today's session we have in the afternoon Professor Namrata Sharma ji. Professor Namrata Sharma is my dear colleague, my friend and my contemporary and director, MALAVIYA Mission Teachers Training Center at Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore. And she is double PG in education as well as MBA, and she has also done her doctorate in the field of this education. And she is associated with this department since long, more than 2 decades, and she has been serving the Devi Ahilya University in the various capacities. She is the part of the various committees, as well as in the hostel, chief warden in the hostel, and also she has taken care of the NAC and many other things. She is rigorously into the teachers training and is working in association with the various centers to increase and improve the quality of the training programs, as well as with a single clear mandate of upgrading the quality and upskilling of the teachers in the higher education system. With her dynamism, she has brought a lot of infrastructural, academic, ICT enabled inputs into her center. Due to her commitment and dedication, and lot of contribution, she has been appraised by the NAC committee several number of times during the visit for creating a benchmark in the area of training. So, ma'am, इतना ज्यादा ना बोलो क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है फिर इनकी. Just बोल दो कि I'm like say these people only having some little bit extra experience, that's all. इन लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ से बड़े-बड़े दिग्गज ही आ जा रहे हैं. भाई पर ठीक है, चलो देखिए बहुत कुछ है कंट्रीब्यूशन के लिए, और जो करते हैं मुझे ऐसा लगता है वो इंस्पिरेशन बनते हैं for the others to learn, and you are one such inspiration for all of us to learn from. चलो So we welcome you. Take time because I have to say introduce you also in the next session. And I told my staff ki please do take care of Arun.
who's taking the session right now. It's a triangle today, huh? It's a triangle today, I tell you. Yes, it's a triangle today. Nevertheless, चलिए आज हम मैम को आमंत्रित करते हैं on the behalf of all the participants and my own personal behalf. I welcome you and invite you for your session. Yeah, I just hope student diversity and inclusive education. Is it visible, ma'am? My PPT is visible to all of the participants. Yeah, it's visible. And please, participants, switch on your camera and be there. Nazrul ji, मैं उम्मीद करती हूँ आपने join कर लिया है, and you will help me to close down this session. Thank you, Shefali ma'am, once again for giving me this opportunity to say, I tell you, you know what, people have paid the amount and they are saying, give me the certificate. How is it possible? Ajeeb se log hai. Anyways, if any given point of time I'm not audible, and if my slides, which I'm kind of, showing it out here, ये यदि कहीं move नहीं होती है, so then in that case, please just let me know, because the drawback of this meet is Google Meet is that, I'm not able to see anyone, and I don't know whether my slide is moving or not, or whether I'm audible also or not. This you only can tell me. So thank you, Shefali ma'am, once again for giving me this opportunity to interact with the participants of your MMTTC. And ma'am has already told you that one of the themes which is to be covered under NEP 2020 orientation and sensitization is student diversity and inclusive education. If already someone has taken or not, I don't know, but then this is going to be the presentation from my end, what I have understood about student diversity and inclusive education, that I'll be sharing it out over here with you. So in this 1 hour, 15 minutes session of mine, the content which I'll be sharing or telling you all, I'm not here to tell you anything. When you all are teachers, therefore I believe that आपकी कुछ understanding है, कुछ आपके already इसमें concept है. I will just be sharing whatever is my understanding is that I'll be sharing with all of you. So पहला तो समझ लेते हैं कि that what is diversity, then फिर हम देखते हैं what is definition of diversity. Diversity in Indian higher education, ये बहुत important है कि suddenly Indian higher education में diversity को इतना क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, और NEP भी जो ये बात कर रही है हायर एजुकेशन में डाइवर्सिटी की, वो क्यों कर रही है. दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. Then we will move towards how student diversity enriches the learning environment. Then after that हम लोगों का जो theme है, that is student diversity and inclusive education. So we will also be learning about inclusive education, कि inclusive education है क्या चीज, what are the aims and objectives of inclusive education, then principles of inclusive education, and last but not the least हम ये देखेंगे अभी कि what are the approaches for promoting inclusive education and higher education. जैसे मैंने बोला आपको कि अभी डाइवर्सिटी की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और डाइवर्सिटी के बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट का क्या उसमें इनपुट है, in order to promote this inclusive education. What is their contribution, how they are, helping the institution in promoting this inclusive education and higher education. So this is in all, in general, in 1 hour, 15 minutes time, we'll just be seeing, and then afterwards, we'll have some time for question answer. So you feel free to ask any question or any observation from your end. So as I said, that we'll just see and we'll try to understand जो भी आपकी understanding diversity पे है, but then this is what I have read about diversity, that is the practice or quality of including or involving people from a range of different social and ethnic backgrounds and of different gender, sexual orientation. See, like in our classroom also, we have students, and there are students, who are of different gender, जैसे कि male है, female है. Sexual orientation could be your homogeneity वाले और heterogeneity वाले भी लोग होते हैं कभी-कभी क्लास में.
जो आजकल हम बात करते हैं LGBTQ की, जिसमें कि लेस्बियंस, बायसेक्सुअल, गेज, इस तरह के स्टूडेंट्स भी क्लास में हमें कभी मिल जाते हैं. Even though they are hiding, they are shy, they are not that open, but then इस तरह के भी स्टूडेंट्स क्लास में. और अब तो nowadays in higher education we are getting students who are transgenders as well. So उसमें जेंडर में भी हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी हो गया, एज वाइज ऑल्सो we are having students who are just school pass out. 18-year-old बच्चा है तो उसमें 25 साल का एक बच्चा भी दिखेगा. और स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स के लिए भी अभी क्या है कि वी आर प्रमोटिंग से women education, we are promoting women or the girls. हम उनको कहते हैं कि भाई उनको क्यों छोड़ना चाहिए, why should we leave the girls behind, because there is no some such role in which no some such profession where females are not around. So even we have to encourage say girls to come and study in higher education institutions. तो एज भी कोई अब डिफरेंस नहीं है, बहुत तरह के लोग मिलते हैं. कुछ लोग तो आई डोंट नो, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, लाइक आई रेड इट समवेयर कि वहां पे एक जो फादर था, आफ्टर रिटायरमेंट ही आल्सो पीजी विद हिज सन. तो मतलब ये भी है कि कोई 50 साल का यदि आदमी आके पढ़ना चाहे एक क्लास में अपने बच्चे के साथ में, तो ऑफ कोर्स एज बार जो है वो भी हटा दिया है हायर एजुकेशन में, कि at any given point of time you can come and study, there's no problem. Then we have disabled students, we have abled students, gifted students also in the class. Then socio-economic disadvantaged groups की जो बात करें तो उसमें जो है एक तो जो marginalized parents, एक जो marginalized in the sense that lower socio-economic background के जो students हैं, even nowadays they are also coming and studying in the colleges and the universities because of the this what do you call it, the facilities being provided to some such students in terms of getting monetary help like scholarship, fellowship, free ships and all that. Then religious and spiritual beliefs, of course हर तरह के हर spiritual belief के लोग हैं. minority जो हम minority group में जैसे Christianity है, then Jain group is there, Sikh group is there. हर religion के जो लोग हैं, they are there in the classroom and they are studying together in a group. So the practice or qualifying of including or involving people from a range of different socio-economic, ethnic backgrounds and of different genders, that is what we call it as diversity. This is just in general. I just am trying to make you understand about diversity. And as if we see the history of our higher education institution or the universities per se, तो पहले के समय में दी हिस्ट्री फॉर वॉट एवर रीजन वी डोंट नो अबाउट इट मच अबाउट इट, बट लेकिन पहले दी हिस्ट्री की उसकी बात देखें आज से करीब 40-45 साल पहले, तो आपको भी मालूम था कि वहां पे इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं होती थी. केवल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड्स के जो लोग होते थे, लाइक अपर क्लास के, दैट टू फ्रॉम ब्राह्मण्स, क्योंकि ऐसा बोला ही जाता था कि भाई केवल जो ब्राह्मण्स हैं और जो बहुत ऊंचे उसके कास्ट के लोग हैं, ओनली दे हैव द राइट टू कम एंड टेक एजुकेशन इन हायर एजुकेशन सिस्टम. पहले जो है इस तरह के आपको जो है SC, STs, OBCs, ये आपको इस तरह के जो लोग हैं वो आपके कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते थे, स्पेशली फीमेल्स. और यदि वैसा देखा जाए तो जेंडर में भी केवल बहुत रेयरेस्ट ओकेजन में ऐसा होता था कि फीमेल्स यूज्ड टू कम एंड टेक एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. आप यदि अपने ही खुद के ग्रैंडमदर को और पूछें तो ग्रेट ग्रैंडमदर्स को, तो हार्डली उसमें से कोई भी ऐसा आपको मिलेगा आपकी नानी दादी में जिन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करी हो. बट दिस इज नॉट द केस नाउ. So therefore, so much of diversity is there. और diversity को और अच्छे से if we need to make, if I want to make you understand, तो इतनी diversity तो अपने इंडिया में नहीं है जितनी फॉरेन कंट्रीज में. फॉरेन कंट्रीज में तो एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में तो डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स की ही नहीं है, वहां तो टीचर्स में भी इतनी डाइवर्सिटी है. मतलब लाइक ब्रिटेन में यदि उसकी कैम्ब्रिज की और उसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की आप डाइवर्सिटी की बात करें तो टीचर्स में भी इतनी डाइवर्सिटी है, बिकॉज ओनली 30% टीचर्स आर देयर फ्रॉम ब्रिटेन. 70% स्टूडेंट्स टीचर्स जो हैं वो
अलग अलग कंट्रीज के हैं, अलग अलग नेशंस के हैं। कोई इंडिया से पढ़ाने गया है तो कोई स्पेन से पढ़ा रहा है, कोई जर्मनी से पढ़ा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा रहा है, कोई अफ्रीका से पढ़ा रहा है। तो इतनी डाइवर्सिटी टीचर्स में भी है, नॉट ओनली इन द स्टूडेंट्स बट इवन इन द say what you call it, teachers, you will get to see the diversity. So ये इस तरह की डाइवर्सिटी तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे तो भी है ही नहीं। बट स्टिल द व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज कि अभी डाइवर्सिटी हम लोगों को ज्यादा समझने की इसलिए जरूरत है बिकॉज नाउ अंडर NEP ऑल्सो वी आर सेइंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में क्या होगा कि मेनी ऑफ द universities from foreign say countries, they'll be coming to India and they'll be opening their campuses. So where there also you'll find teachers, they are not going to just be from that country, but then they will be coming from different other countries also who will be coming to our nation and they'll be opening their campuses. So वहाँ पे आपको really में diversified group के teachers भी मिलेंगे और स्टूडेंट्स भले आपको इंडिया के ज्यादा मिल जाए लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आल्सो। तो उनकी इतनी एथनिसिटी है, उनके इतने अलग रेस है। कोई ब्राउन, जैसे आप इंडिया से कोई बच्चे जाते हैं वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में तो दे आर टर्म्ड एज ब्राउन। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना, जापान, सो उनको दे आर टर्म्ड एज येलो। तो इस तरह से उनको जो है उनकी एथनिसिटी से उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है। एंड उनके रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग हैं। कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है, कोई हिंदुइज्म कर रहा है, कोई मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहा है। तो इतनी डाइवर्स ग्रुप है वहां पे कि हमको डाइवर्सिटी अब समझने की बहुत ज्यादा नीड हो चुकी है। समझना ही पड़ेगा कि व्हाई डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट। So it is the concept of diversity encompasses acceptance and respect. जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे क्लास में भी जैसे डाइवर्स ग्रुप है, so we need to accept each one of us, each one of them, and we have to give respect to each one of them because we all are very, very unique. No two persons can be say of this thing, they are not similar in their nature, in their behavior. उनका जो है यदि एक फैमिली में भी यदि एक ब्रदर और सिस्टर होते हैं, so we know that they are different from each other. So similarly in the classroom also, that no two students can be of the similar nature behavior. उन सब में जो है they are all unique, and इसी uniqueness को हमको जो है we need to accept it and we need to give respect to them. It also means understanding that each individual is unique and recognize our individual differences, and individual differences and similarities add to the richness and texture of the educational experience. This is very important for all of us as a teacher to understand कि जो differences होते हैं, individual differences होते हैं, it brings lot of richness and texture of the educational experience. क्योंकि क्लास में केवल एक ही तरह के, जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. इफ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एवरेज स्टूडेंट्स, देन एक गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं वीक अचीवर्स होते हैं, एक हाई अचीवर्स होते हैं, एक लो अचीवर्स होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं. तो सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं. सो इट डेफिनेटली ब्रिंग रिचनेस इन द क्लासरूम एक्सपीरियंस, क्योंकि एक ही तरह की थॉट प्रोसेस होगी, एक ही तरह की सोच होगी, एक ही तरह का स्टेटस होगा. So there'll be just only मतलब there'll not be any differences, and in terms की सब एक तरह की सोच वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिकनेस रहेगा. But if they are coming from different backgrounds, socio-economic, culturally background जो उनके अलग अलग होते हैं, so they all bring different kind of a richness in the classroom. जैसे साउथ के स्टूडेंट है तो उनका कल्चर अलग है, नॉर्थ के स्टूडेंट्स है तो उनका कल्चर अलग है. तो मतलब बहुत वो जो क्लासरूम में जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी इनरिच्ड होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने तरीके से सोचकर और अलग तरीके से वो जो है क्लास में इंटरेक्शन करता है. सो सबकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए भी बढ़ती है, एंड वी एक्चुअली लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स एंड कल्चरल वैल्यूज, अबाउट देयर values and their attitudes, their aptitudes, जो है सब कुछ हम एक दूसरे के बारे में समझते हैं. This is what is the uniqueness, and this is what we need to enjoy. So diversity actually should be embraced, and it should be enjoyed, and it should not be like said कि ये क्या है, अलग कल्चर क्या है तो इसलिए इनको अलग कर दो. It should not be considered as a burden or a liability. It should be really enjoyed. So here it says that everyone is unique. Yes, we all are unique, and we all are
having different kind of personalities. So let us move and see the definition of diversity. So diversity की एक जो यहाँ पे definition है वो ऐसे है कुछ, the inclusion of individuals representing more than one national origin, color, religion, socioeconomic stratum, sexual orientation. ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि यदि हम दूसरे कंट्रीज में जाके देखें तो नेशनल ओरिजिन सबके अलग अलग हैं. कोई जो है यूरोप का है, तो कोई अफ्रीका का है, कोई इंडिया का है, कोई मिडिल ईस्ट का है. तो सबके नेशनल ओरिजिनलिटी अलग है, कलर्स उनके अलग हैं. दे आर फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटम अलग होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होता है. सो दिस इज व्हाट वी से कॉल इट एज डाइवर्सिटी. और यदि क्लास में एक भी स्टूडेंट यदि डिसेबल्ड स्टूडेंट, सपोज की दैट वी आर हैविंग ऑल फिजिकली एबल्ड स्टूडेंट्स, बट देयर इज वन पर्टिकुलर स्टूडेंट who is visually impaired, yeah, there is one student who is physically handicapped. तो यदि एक स्टूडेंट भी होगा जो फिजिकली जो है who is disabled in whatever forms, maybe hearing के point of view से देख लीजिए, या इसके विजुअली इम्पेयर्ड को देख लीजिए, या फिजिकली उसका डिसेबिलिटी देख लीजिए, क्योंकि एक भी स्टूडेंट वो थोड़ा बाकी लोगों से अलग है. So then we call it कि भाई this is a diverse group, or this is a diverse classroom, we can call it as. So this is what is we need to understand about the diversity. Then एक ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ लर्नर डाइवर्सिटी की बात करी है. अभी तो हम केवल डाइवर्सिटी समझ रहे हैं. And then what do we understand about learner diversity? So diversity usually is related to the ethnic background of students. It is however a much broader concept. Learner diversity जो है वो broader concept है. Any time that a student is different from the rest of the students in a class, that student is diverse. That particular student brings diversity in the classroom. जैसे मैंने बोला कि एक student जो है visually impaired है. अब यदि teacher जो है और he has a style of teaching, using a blackboard, or maybe giving some notes. बहुत सारे teachers होते हैं जो अपने बच्चों को notes देते हैं. अब if you are giving notes to the students who are physically able, तब तो कोई problem ही नहीं है. But suppose there is one student who is visually impaired. So do you think कि जो teacher जो वो notes दे रहा है कि it is going to be of any help, or whether it is going to be useful for visually impaired student? No, it is not. क्योंकि वो तो पढ़ नहीं सकता ना, because the teacher is not giving any notes say which is written on braille. उसको तो हमें braille में कुछ material provide करना पड़ेगा. या वो जो स्टूडेंट है विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको उसकी लर्निंग कैसे होगी? डेफिनेटली यदि वो क्लासरूम में बैठा है तो उसको जो स्टूडेंट टीचर यदि कुछ बोल रही है वर्बल, इफ शी इज गिविंग सम डिक्टेशन, और शी इज काइंड ऑफ शी इज टेलिंग, और शी इज डिलीवरिंग अ लेक्चर, सो दैट विल बी to understand कि trying to हाँ PowerPoint presentations के वो दे रहे हो, या फिर आप उसको notes दे रहे हो, तो definitely it is of no use. That a student is different from rest of the students in a class, that student is diverse. And diversity can relate to gender, sexual orientation, socioeconomic status, ethnicity, country of national origin. So this is another definition of diversity. Now we are moving forward. That is, there is a need to understand diversity in higher education. तो हम यही समझना चाहते हैं कि भाई excuse me, someone's mic is open. Just close your mic, please. मनीषा जी, आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए. थैंक यू. यहाँ पे एकदम से कभी-कभी जो है ना माइक खुल जाते हैं. कभी ये कभी यही है जी, कुछ नहीं कर सकते हैं. चलिए, खैर, नेवरदलेस. सो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई अचानक नीट कैसे हो गई. तो हमने आपसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड में आपको बताया था कि भाई यदि हम इंडिया का हायर एजुकेशन का हिस्ट्री और इतिहास देखें तो आपको लगेगा कि पहले तो जो है बहुत एलीट ग्रुप के जो लोग होते थे, एलीट क्लास के लोग जो होते थे, वो सब आते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए. बट नाउ इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट एलीट स्टेज टू अ मैसिफिकेशन स्टेज.
और इस मैसिफिकेशन स्टेज में जैसे मैंने बोला कि हर ग्रुप के, हर तबके के लोग और इवन डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको भी जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस उनको दिए जा रहे हैं। और इसलिए हमारे लिए एज अ टीचर इट इज बिकम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव डाइवर्सिटी इन हायर एजुकेशन। यदि 2021 की बात करें तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज ग्रोन टू 4.41 करोड़, दैट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम आफ्टर चाइना। अभी भी आज में देखें तो चाइना का हायर एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा है, कंसीडरिंग द फैक्ट ऑफ कोर्स उनकी पॉपुलेशन भी हमारे से पहले ज्यादा ही होती थी, लेकिन वहां पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है बहुत अधिक है। और हमारे इंडिया का जो भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन इंडिया? एनीवन? Participants, if you are with me, can you answer this question of mine? What is the gross enrollment ratio, say, of India in higher education? Participants, are you able to hear my voice? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am, audible. I am audible. Okay, so मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंडिया में कितना है अभी हायर एजुकेशन में? नहीं पता जी। नहीं पता, कोई बात नहीं। इट इज 27%। GER इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जहां पे जो हिंदुस्तान का भी जो GER है हायर एजुकेशन का वो है 27। NEP 2020 जो डॉक्यूमेंट है वो ये बोल रही है कि अभी जो 27% हमारा GER है उसको हमको 2030 तक के, 2030 से अभी 24 चल रहा है, तो 6 साल में दे वांट टू ब्रिंग इट टू 50%। तो अब आप सोचो कि कितना ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है NEP 2020 का, कि जो 27% है, 27% आप मतलब यदि आप मोटा मोटा मान लो तो आप यदि ऐसे देखो तो 30% भी चलो मान लो, उसमें 20% और एडिशन करना है, तो 20 नहीं 23% स्टूडेंट्स को वो कहते हैं जी कि पूरे 50% स्टूडेंट्स को हमको जो है हायर एजुकेशन की जो ये है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या हायर एजुकेशन सिस्टम में उनको इनरोल करना है और उनको डिग्री देनी है और उनको पढ़ा लिखा के सक्षम करना है, जिससे कि वो अपना कुछ ना कुछ रोजगार, या तो अब देखो सरकार दे तो नहीं रही है नौकरी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कर ले so that they are not dependent on the government, you know, for any some such thing कि they are not dependent on the government। and secondly कुछ ऐसे भी स्किल डेवलपमेंट किए जाएं जो कि उनको भी मालूम है that in many of the countries, आपको भी मालूम है, country like Japan, country like Korea, country like even in many of the countries there in Europe, वहाँ पे जो है जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। इट्स नॉट इंक्रीजिंग बट इट इज डिक्रीजिंग। तो इंडिया में ये है कि भाई हमारा जो अभी यूथ है, जो हमारा जो जिनको जो ये जो नौकरी मांग रहे हैं, तो उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दें कि ताकि जहाँ पे भी स्किल्ड लोगों की जरूरत है तो ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वहां जाके नौकरी कर लें और वहां जाके भी वो पैसे कमा के अपना जो है रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये इसीलिए वो GER का जो वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का जो गवर्नमेंट का आइडिया है वो इसलिए भी है क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हायर एजुकेशन में आए और एजुकेशन ले, और वो जो है कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे, क्योंकि नेचुरली देयर इज समथिंग कॉल्ड रेमिटेंस। जो बच्चे बाहर जाते हैं वो अपने कंट्री में अपने पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए जो है वो पैसे भेजते हैं, तो इसके कारण भी हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज होगी। सो दैट इज व्हाई दे वांट टू increase the GER in higher education system. And over the years, the enrollment students from all sections of society, particularly from weaker and disadvantaged sections, such as girls, SCs, STs, and linguistic, ethnic, and religious minorities have increased in the classroom. And therefore, owing to the increased inflow of students from weaker and disadvantaged sections, classrooms and college universities are becoming increasingly diverse. And there has always been diversity in the classroom, but in today's society, it is important to embrace it and make positive use of it. Then diversity is essential to have better relationship with one another.
with one another, but it can be extremely difficult to embrace diversity, especially when people have preconceived prejudices. इसमें आपको यदि एक एग्जांपल देना चाहें तो जैसे पहले हमें मालूम था कि मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत कम जो स्टूडेंट्स हैं they used to come to study in higher education system. अब अभी भी कम है when you compare it with other say religion. So minority religion में भी जो है हम यदि देखें तो मुस्लिम स्टूडेंट्स अभी भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन सिस्टम में आते हैं और दे आर टेकिंग एजुकेशन. अगेन इन यदि उस तरह से देखें तो माइनॉरिटी ग्रुप में भी जो एलीट क्लास के लोग हैं, केवल वो जो इस तरह के एलीट ग्रुप के जो माइनॉरिटी सेक्शन के जो सेगमेंट के लोग हैं वो क्लास में आते हैं और स्कूल कॉलेजेस में आते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. बट यदि आप ऐसे मेजॉरिटी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो दे आर इनटू आर्टिसंस. आर्टिसंस मतलब वो इस तरह के जो काम होते हैं ना, जो बारीक बारीक काम होते हैं. लाइक इफ यू नो, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो जितने भी एसी ठीक करने वाले, रिपेयर करने वाले लोग होते हैं या इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं, सो दे आर बेसिकली फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी. सो जब इस तरह के आर्टिसंस की बात करें या वीविंग की बात करें, जो बहुत फाइन वीविंग होती है, जैसे इस तरह के जो आप यदि उसका एग्जाम्पल लेना चाहें, जो बनारसी साड़ियां हैं, बनारसी साड़ी में यू विल हार्डली सी एनी हिंदूज हु आर इनटू दिस वीविंग बिजनेस. मेजॉरिटी मतलब 90% जो आपको वीवर्स मिलेंगे ना, 90 एंड अबव 95% भी कह लो, सो ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी के हैं. तो आप देखो कि केवल 5% ही ऐसे लोग हैं जो हिंदूज हैं एंड हु आर इनटू दिस वीविंग बिजनेस. सो अब ये क्या होता है कि जब इस तरह के बच्चे हमारे क्लास में आते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों के कुछ एक नोशंस हो जाते हैं कि भाई ये मुस्लिम ग्रुप है तो इसलिए यदि हम कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देंगे, यदि कोई मतलब लड़के लड़की को साथ बिठा दे तो टीचर को भी लगता है कि अरे नहीं, यदि एक लड़की को हम बिठा देंगे, स्पेशली मुस्लिम लड़की को एक लड़के के साथ बिठा दे तो दे कैन बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई. तो ये एक बड़ा ही मतलब हमारे लिए भी बहुत एक चैलेंजिंग वो रहता है कि आई डोंट नो कैसे करना चाहिए, वी डोंट नो हाउ टू टेकल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. और ऐसे एग्जांपल्स हम उनको ना दें सो दैट देयर sentiments get upset or they get hurt about कि हम इस तरह के एग्जांपल दे रहे हैं. या एक टीचर है, जेंट्स टीचर है, उसके साथ में एक मुस्लिम लड़की, भले उसको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, पर यदि कोई जेंट्स टीचर्स हैं और उसको घर छोड़ने चले जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी, मतलब क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी हैविंग सम प्रीकंसीव्ड प्रेजुडिसेस. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू हैव बेटर रिलेशनशिप विद वन अनदर. तो डाइवर्सिटी जब होगी ना तो हम लोगों को एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे के कल्चर को हम समझेंगे भी एंड विल गिव रिस्पेक्ट ऑल्सो. और यदि कोई भी चीज हमें मालूम है कि उनके कल्चर के ये है, ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली विल नॉट से काइंड ऑफ डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. तो हमें ये चीजें तभी पता चलती है जब हमारे क्लास में और हमारे क्लास के ग्रुप में इस तरह के अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तब हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, समाज भी में भी अच्छी तरह से एक दूसरे की समझ बनती है. एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू से काइंड ऑफ हैव डाइवर्सिटी. अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसे रिलीजन को, एक ही जैसे लैंग्वेज को, एक ही जैसे कल्चर को, तो उसमें तो कुछ एक दूसरे के लिए कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. बट देन व्हेन यू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तो तभी हमको पता चलता है कि ओके ये तो है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं. तभी एक जो है अच्छा समाज, जिसको कोहेसिव ग्रुप जो बोलते हैं, कोहेसिव सोसाइटी, गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तभी हो पाता है जब हम अच्छे तरह से डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं. ये उन्हीं चीजों को मैंने वापस से रिपीट किया, डाइवर्सिटी इन इंडियन हायर एजुकेशन, कि दैट यदि हायर एजुकेशन में बात करें तो जेंडर डिफरेंसेस हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग आ रहे हैं, ओबीसी भी है, SC ST भी है, जनरल भी है, उनके रिलीजियस बैकग्राउंड अलग अलग है. इवन मैरिटल स्टेटस वाइज यदि देखें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑफ कोर्स मैरिड, बट देन देयर आर सम स्टूडेंट्स who are married students also in the classroom. फिर जोग्राफिकल लोकेशन उनकी अलग अलग है. यदि आपको जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन की बात देखनी है तो JNU इज द बेस्ट एग्जांपल. वहाँ पे साउथ के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी बिहार के बच्चे तो है ही हैं.
सो इस तरह भी आपको जोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी डाइवर्सिटी है, उनके लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके लर्निंग एप्टीट्यूड भी अलग हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है, गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच वाले भी हैं, हियरिंग भी हैं। इवन इस तरह के बच्चों को भी आजकल हम हायर एजुकेशन में एडमिशन दे रहे हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। कल्चरल डिफरेंसेस आर आल्सो देयर। सो मीनिंग ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी, अभी तो हमने केवल डाइवर्सिटी की बात समझी, और अब लर्नर डाइवर्सिटी की भी बात थोड़ा समझ लें। ये क्लासरूम्स आर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स and the ways in which they learn. जैसे मैंने आपसे बोला था, I just gave you the example right now, कि यदि क्लास में एक भी स्टूडेंट अलग है, यदि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, तो वो डाइवर्स, वो हम कहते हैं क्लासरूम में कि डाइवर्सिटी इज देयर। तो इसीलिए यदि क्लास में एक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो डेफिनेटली उसको जो हम पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाने का जो टीचर का स्टाइल होगा वो अलग होगा। एंड द टीचर कैन नॉट से काइंड ऑफ गिव नोट्स टू एवरीवन, क्योंकि नोट्स तो सबको तो मिल जाएगा। नोट्स से आप उनको पढ़ा दोगे जिनकी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी आईसाइट अच्छी है, पर यदि कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको आप नोट्स नहीं दे सकते हो। यदि आप ब्लैक बोर्ड में कुछ ड्राइंग कर रहे हैं या डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो इट विल नॉट बी क्लियर टू दैट स्टूडेंट हु इज विजुअली इम्पेयर्ड। So therefore, their learning style of the students within the classroom is also different. So this is what is the meaning of learner diversity, where students learn in different ways because of their experience, because of their environment and socioeconomic and cultural atmosphere that promotes cross-cultural understanding. ये बहुत ही important है कि जो अलग-अलग cultural background के लोग होते हैं, वो जो है उनकी, हम लोगों को एक दूसरे की क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बनती है क्लासरूम में, क्योंकि सब अलग अलग कल्चर के, जैसे पंजाबी जो होते हैं वो थोड़े लाउड होते हैं। आई एम सॉरी इफ समबडी इज देयर, बट वो हर चीज में बहुत जोश और उनमें वो रहता है। इससे मुझे एक आपको एग्जांपल देना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे मैम ने बताया कि दैट टाइम ऑफ वार्डन, तो वहाँ पे ना एक साउथ इंडियन लड़की थी मेरे यहाँ पे, वो यहीं कहीं की, उसके फादर का मतलब ट्रांसफर हुआ था, तो पास ही एमपी में कहीं पे ट्रांसफर हुआ था, तो शी केम एंड शी टुक एडमिशन इन आवर यूनिवर्सिटी। तो वो बेचारी लड़की जो थी वो केरला की थी या पता नहीं तमिलनाडु की थी, एंड सो शी केम एंड इन द हॉस्टल, तो वो पढ़ाई यहीं पे कर रही थी, हमारे हॉस्टल में थी। और उसके साथ में एक जो है दिल्ली की लड़की का उसको डाल दिया। तो हमने कहा चलो अच्छा है, दोनों बच्चे बाहर के स्टेट के हैं, सो दे विल जेल बेटर, दे विल हैव अ गुड बॉन्डिंग। लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। वहां उल्टा क्या हो गया कि वो जो है हर समय, जो इधर दिल्ली की लड़की थी, वो ना जोर जोर से हंस के बातें करती थी, और उसके पीठ पे जोर जोर से पीठ थपथपा के बहुत जोर जोर से हंसती रहती थी। एंड दिस गर्ल वाज वेरी कॉय एंड नॉट दैट वोकल, हर समय मतलब अपने में ही रहती थी ज्यादा करके। तो फिर वन डे शी केम टू मी एंड शी सेड कि मैम आई वांट टू चेंज माय रूम। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप दोनों तो एक ही क्लास के हो, मतलब एक ही क्लास में दे वर परसुइंग देयर एमबीए। मैंने कहा आप लोग तो एक ही क्लास उसके हो, आप लोगों की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन व्हाई यू आर काइंड ऑफ यू वांट टू चेंज द रूम। सो पता चला कि वो बोली थी कि दिस गर्ल हु इज फ्रॉम दिल्ली, वो बहुत जोर जोर से बातें करती है, और जरा भी वो एक्साइट होती है तो मेरी जोर जोर से जो है पीठ थपथपाती है और जोर जोर से हंसती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। So, उसका आप देखो कि उनकी जो कल्चरल जो वो है वो कितने अलग है। जैसे कि कोई साउथ के, वहां पे उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसा सिखाया है कि भाई आप यदि खुश भी हो तो ठीक है, नीड नॉट टू से पैट द बैक ऑफ अदर्स, और जोर जोर से बात करना, हंसना, ये सब चीजें साउथ में इतना नहीं है, बट इन नॉर्थ इट इज वेरी कॉमन। आप जरा भी एक्साइट होते हो तो जो है तालियां बजाते हो, एक दूसरे को हाई फाई करते हो। So if you have students, some such students within the classroom, तो आपको उनकी cultural understanding भी पता चलती है कि भाई वो उसको किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, which is otherwise is not possible. So in the classroom diversity applies to यदि हम classroom की बात करें, तो अभी तो cultural understanding की बात हो रही थी, but लेकिन classroom के perspective से देखिए तो diversity applies to learning styles, background, educational backgrounds, language and support at home. क्योंकि हर एक के घर का बैकग्राउंड अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके लर्निंग, इसलिए उनकी लर्निंग स्टाइल्स भी अलग होगी। क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स होंगे, तो जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स में कई बार आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता
जो दूसरे घरों से जो बच्चे आते हैं, जिनके यहाँ पे बच्चे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी हायर एजुकेशन से सिस्टम से एक्वेंटेड हैं, तो यदि इस तरह के स्टूडेंट्स भी आपके क्लास में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स, तो उनको जो है कुछ समझ नहीं आता, मतलब दे आर वेरी दिस थिंग, उनको बड़ा दे फील डिजेक्टेड, दे फील डीमोटिवेटेड, क्योंकि उनके घर में भी किसी को उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, दैट बच्चों को क्यों हमारे क्लासरूम में परेशानी आ रही है। सो ये उनके, इसीलिए उनके स्टाइल ऑफ लर्निंग भी अलग हो जाती है। तो ये हमारे को एज अ टीचर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि डाइवर्सिटी मीन्स वैल्यूइंग द डिफरेंसेस बिटवीन पीपल and the ways in which those differences can contribute to a richer, more creative and more productive working environment. And the diversity fosters tolerance, empathy and understanding of different cultures, enriching the overall educational experience. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया कि डाइवर्सिटी से हम एक दूसरे के कल्चर के लिए टॉलरेंस डेवलप करते हैं, एक दूसरे के लिए एम्पैथी डेवलप करते हैं, एक दूसरे के कल्चर के लिए अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं कि भाई हमारा कल्चर उनके कल्चर से अलग है, सो फिर हम उनके साथ किस तरह से बिहेव करें। सो ओवरऑल इट enriches the overall educational experience, that is diversity enriches the overall educational experience in the classroom or of the classroom. And then how student diversity enriches the learning environment. So I've given you many of the examples here. अभी मैं आपको एग्जांपल्स देके ही मैं समझा रही थी, ये उसी का ही वो है। स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस इज एनहांस्ड बाय डाइवर्सिटी, स्टूडेंट डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं, हमारी इस तरह की सपोर्ट एट होम इज डिफरेंट, तो इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट होता है, स्पेशली जो cognitive development is to do with the knowledge, knowledge part. तो हम एक दूसरे के cognitive development से हम इस तरह से समझे तो हमें पता चलता है कि ओके भाई ये इनके कल्चरल वैल्यूज हैं, इसलिए हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, हम उनकी जो है ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, इनको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऐसे बच्चों को। तो ये जो है उनकी जो आइडियाज हैं वो सब भी अलग अलग होते हैं। सर इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके सबके आइडियाज अलग होते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज अलग होती हैं, उनके कल्चरल वैल्यूज के कारण उनके एटीट्यूड अलग होते हैं। सो दिस इज व्हाई स्टूडेंट डाइवर्सिटी एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप होती है, आप एक दूसरे के लिए अच्छे से टॉलरेंस एंड एम्पैथी डेवलप करते हैं। एंड क्लासरूम इज पिक्यूलरली द मार्केट प्लेस ऑफ रोबस्ट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्योंकि क्लासरूम में हम लोगों के यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग जब एक ग्रुप में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि द स्टूडेंट्स आर पुट टुगेदर, तो उसमें अलग अलग कल्चर के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यदि साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली सबके आइडियाज पता चलते हैं, एंड एक दूसरे के लिए हम फिर उस समय समझते हैं कि ओके ठीक है, ये यदि इस तरह के आइडियाज हैं तो इसलिए ये रीजन है, तो देन वी आर सपोज टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वहाँ लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि डाइवर्सिटी एक्चुअली वी नीड टू respect the diversity. We should not consider this as a liability or a burden. So by gaining perspective of peer, एक दूसरे को हम जब समझते हैं उनकी आइडियाज इस तरह के क्यों हो सकते हैं, what is the reason that she is talking like this or he is talking like this. स्टूडेंट्स का अलग अलग जब अलग अलग आइडियाज आते हैं तो आपको पता चलता है कि ओके ठीक है भाई उनका बैकग्राउंड इस तरह का है, इसलिए therefore they are talking like this. So we have to learn from other students aside from the instructors, क्योंकि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो केवल इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स ही नहीं रहते हैं, we learn from each other, जिसको peer learning भी बोलते हैं. So this is also one way of learning from each other, and also we learn about the diversity also. Student diversity prepares learners for their role as responsible member of the society. Classroom से ही तो हम एक दूसरे के बारे में समझते हैं, और जब हम एक्चुअली में वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ वर्क प्लेस पे भी आपको मालूम है कि कोई वहाँ सिख ये है एम्प्लॉई है, तो सिमिलरली एक मुस्लिम एम्प्लॉय भी है, कोई जो है जैन है, कोई क्रिश्चियन है, तो हम एक दूसरे से कैसे आपस में बातचीत करेंगे, हम उनके कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं उसको हम कैसे मिटिगेट करके आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप रखेंगे, एक दूसरे के लिए एम्पैथी होगी, एक हार्मोनियस जो कम्युनिटी की बात है, दिस एक्चुअली वी लर्न इट इन द क्लासरूम ओनली. स्टूडेंट डाइवर्सिटी कैन प्रमोट हार्मनी, so this is important, and diversity is about respecting individuals. So this is what in nutshell is about diversity, student diversity in the classroom.
and so this is the student diversity actually enriches the learning environment. So participants, any questions so far about related to diversity? So please, if at all you have anything to say about diversity, or you want to ask any question, please feel free. Any participant is having any query or question? Yes, please respond. I don't know whether they are here also or doing something else. Oh God! So if you do not have any questions, so let us move forward. And now we'll try to understand about inclusive education. ये एक छोटा सा एक मैंने illustration रखा है यहाँ पे आप लोगों के understanding के लिए, diversity, equity and inclusion. तो अब हम इंक्लूसिवनेस की ओर जा रहे हैं. तो जैसे मैंने आपसे बोला कि डाइवर्सिटी में अलग अलग लोगों के अलग अलग लोग हैं. डाइवर्सिटी encompasses of different people from different origin and different culture. उनके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं. ठीक है. फिर इंक्लूजन में तो अब सबको हम साथ लाने की बात कर रहे हैं. भाई डाइवर्सिटी तो हो गई, लेकिन अब हमको we have to understand about इंक्लूजन पार्ट. तो इंक्लूजन में क्या है, यदि इंक्लूजन में देखें तो यदि समझने की कोशिश करें तो इंक्लूजन में ये हमने किया है कि वहाँ पे जो पहले के क्लासरूम्स होते थे उसमें सब एक ही तरह के लोग होते थे. जैसे मैंने बोला कि इसे क्लासरूम में भी केवल एलीट ग्रुप के ही लोग होते थे. एलीट ग्रुप के लोग हैं तो उनकी नेचुरली एक जैसी, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक जैसी होगी, उनके कल्चरल वैल्यूज भी एक जैसे हैं, उनके लैंग्वेज भी अलग अलग नहीं बोल रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं. तो इसलिए जो है उसमें कोई आपको जो है डिसिमिलैरिटी नहीं है, सब में वो सिमिलैरिटी की ही बात है. और यदि हम एक्सक्लूजन की बात करें, यदि उस समय की बात करें, पुराने समय में, तो अलग जो डिसेबल्ड लोग थे, स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनकी स्पीच हियरिंग प्रॉब्लम है या स्पीच रिलेटेड है या हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो दे वर एक्सक्लूडेड say from getting, they were excluded in terms of getting admission into higher education institution and the university. बाद में फिर बात होने लगी segregation की. तो segregation का मतलब था कि they were excluded from the mainstream. They were excluded from the mainstream. जैसे क्लासरूम में उनके लिए कोई जगह नहीं होती थी. जो डिसेबल्ड लोग थे, मेंटली चैलेंज्ड लोग थे, उनके लिए क्लास में कोई भी जगह नहीं होती थी. They used to have a different set of schools and colleges. अब वो तो मतलब उनको पढ़ाई तो हो रही है, but then उनकी पढ़ाई अलग होती थी. अब उससे क्या होता था कि नेचुरली वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि जो इस तरह से ग्रुप होते हैं, यदि आप उनको सिग्रीगेट कर दो, सेक्लूड कर दो, तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशनल लेवल बाकी स्टूडेंट से, नॉर्मल स्टूडेंट से, उनका जो वो है वो कम रहता है. वो कभी भी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कभी भी उनमें वो कहना चाहिए कि मतलब they will always feel inferior, कि कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी है. That's why we are not part of the group, So they were getting education, but they were again having a separate set of college or institution. Just उनको segregate कर दिया. Then comes to another form of integration. जैसे integration की बात करें, तो they were brought to the institution, उनको colleges में उनको ले आए, they were put together, but at the same time उनके लिए जैसे कि जो फिजिकल डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब आपने देखा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है तो वो ऊपर नहीं चल सकता, बिकॉज प्रीवियसली यदि आप उस समय की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, so they were not having any facility like lift in the say building. They were not having any ramps in the building. So how do you expect some such students to reach to the classroom? तो क्या होता था, the teachers what they used to say कि आप नीचे बैठो, if the classes are happening, maybe I mean I don't know कि भाई जरूरी नहीं है कि उनकी क्लासरूम नीचे ही होए, but यदि उनकी क्लासरूम बच्चों की क्लासरूम यदि फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो टीचर्स क्या कहते हैं कि भाई आप नीचे भी बैठो, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, and then towards the end of the class I'll come and I will give you notes, क्योंकि रैंप फैसिलिटीज नहीं है, व्हील चेयर्स नहीं है, लिफ्ट नहीं है,
तो आप ऊपर चढ़ के चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो हम आपको बाद में नोट्स दे देंगे, आपको बुक्स, मटेरियल्स, रेफरेंस बुक्स वगैरह दे देंगे. So this is what was the example of integration, that they were brought in the higher education system, but still they were not part of the classroom. Now we are talking about inclusion. Inclusion का मतलब है that they are being part of the whole. Part of the whole means कि जब हम classroom की बात करें तो सारे students, they are put together. No matter whether the student is, weak student or physically disabled students, visually impaired students, so they all have to be put together. So they are part of the classroom. उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं. क्यों नहीं छोड़ सकते हैं वो हम उसके बारे में आगे समझेंगे, क्योंकि उनको भी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि somewhere they will feel that they will get they will be demotivated, they will have some kind of a complex कि भाई complexities will be there कि भाई हम इनके बराबर नहीं है, we are not at par, and उनको ये भी लगेगा कि we will not be able to get the jobs. Why? Because हमको वो सारी facilities मिल ही नहीं रही हैं जो एक normal student को class में मिलती है या education system में मिल रही है. So that is why NEP is talking about having inclusion, that is inclusive education. So what is inclusion is the action or state of including or of being included within a group or structure. So make people feel welcomed. यदि कोई भी बच्चा disabled है तो भी उनको you need to make them feel welcomed in the class or in the education system. You are not supposed to exclude some such students, and you need to give respect to them also. केवल ऐसा ही नहीं है कि जो नॉर्मल और हाई अचीवर्स बच्चे हैं उन्हीं को हम उनको रिस्पेक्ट दें, उनको जो है उनसे बात करें. नो, इवन व्हाट हैपेंस अदरवाइज इफ दे विल नॉट मेक देम फील वेलकम्ड, देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रॉप आउट which we cannot afford, and which we do not want it also, because education is the right of everyone. आप यदि physically disabled हो तो that does not mean कि आप उनको जो है education नहीं दोगे. अभी तो जो है स्कूल तो खैर है, but even in universities आपने बहुत सारे ऐसे students को देखा होगा कि they are visually impaired, and I know that there were 2 students in my hostels, not in immediate जहाँ पे मैं warden हूँ, but then there is another girls hostel. ये दोनों जो blind students थी, they were female students. Both of them were blind, and they were not in the same year, but लेकिन वो दोनों वहीं से पढ़ के और वहीं से निकली, and they used to find it very difficult even to reach to the university because थोड़ा hostel अलग है. So they approached me, being the chief warden, and then like they said, madam, if one of the maid can come and help me in they can drop me here in the university, and बाद में फिर मैं किसी स्टूडेंट के साथ में वहां आ जाऊंगी या कुछ मैनेज करा उसने. आई डोंट नो अबाउट इट, बट देन शी अप्रोच्ड मी फॉर दिस रीजन कि यदि कोई एक मेड मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे छोड़ देगी तो इट विल रियली हेल्प मी. तो वो एक मैंने फिर एक जो यहाँ पे लेडी वर्कर थी उसको मैंने बोला कि भाई दिस इज अ रिक्वेस्ट, सो उसको प्लीज उसके क्लासरूम तक उसको छोड़ के आओ, और फिर आते वक्त भी कभी कभी कोई ना कोई तो उसको वहां पे हॉस्टल में ड्रॉप कर देता था. सो यू नीड टू मेक देम फील वेलकम्ड. एंड नाउ those both the blind students जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकली हैं, जो दोनों लड़कियां, both of them have become professors, and I feel so happy, and they attended NEP program also from my this MMTTC. They said कि हमें मालूम है कि आप बहुत helpful हैं, so I mean I was very thrilled to see them, and they said कि और भी programs उन्होंने मेरे यहाँ से किए हैं, like they have attended orientation, offline भी किया है, online भी किया है. So I feel very happy that because we need to give respect to some such students who are coming and taking admission in the higher education system. We should not make them feel unwelcome, we should not exclude them, we should make them feel important, and we should welcome them and should make them feel part of the group. So inclusive education is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. And inclusive education helps creates cohesive societies. जैसे मैंने पहले ही बोला कि अब हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, like एक और स्टूडेंट, अभी एक और टीचर 2 बैच पहले, I think probably in the 4th batch, he was attending this NEP program, and abhi
हमारे यहाँ अभी सोशल साइंस वालों का कुछ एक वर्कशॉप चल रहा है which is sponsored by ICSSR. So I saw him out there. So I was so happy to see him. He said, "Ma'am, I would like to come for this offline programs also." But then School of Social Sciences are doing this program for the research guides. So he is a faculty and he is also a guide. So he was attending this program of this workshop of School of Social Sciences, and he is staying in the guest house of MMTTC only. So I was very happy to see that he is here. And so actually inclusive education helps create cohesive societies, क्योंकि हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपको दिख नहीं रहा है तो आपको हम अलग तरीके से रखें, हम आपसे बात नहीं करें, आपको हेल्प एक्सटेंड नहीं करें. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. हमारी एम्पैथी कैसे उनके लिए डेवलप होगी जब तक हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ खुद पढ़ाई नहीं करेंगे. एजुकेशन जब हमारी उनके साथ होगी तभी तो हमें समझ में आएगा कि भाई व्हाट इज देयर नीड, व्हाट इज इट दैट दे आर थिंकिंग, how do we behave with them, so we also become very this thing, थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि हमें भी एक वो empathy हम develop करते हैं. We develop empathy towards these people. They don't want sympathies. Let me tell you one thing, as a teacher this is very important. They do not want any sympathy. यदि आप उनको sympathy दिखाओगे तो उन्हें समझ में आता है. They don't want sympathy but they want empathy. हमें उनको एम्पैथी हमारी तभी डेवलप होगी जब हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में खुद भी बड़े होंगे. बड़े इन द सेंस कि पढ़ेंगे साथ में, देन विल ग्रो टुगेदर and will definitely be able to understand भाई उनकी needs क्या है, what is it that they like, what is it that they do not like, what is it that they are sensitive about. So this actually develops and creates a cohesive society. So therefore inclusive education is important. Inclusive education is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning styles and language. So inclusive education is basically it promotes full personal, academic and professional development of all the learners. तो इसलिए जो है inclusive education जो है वो important है, because सबके पर्सनल ग्रोथ के लिए और एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो हायर एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू द फुल डेवलपमेंट और द होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसकी हम बात करते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारी चीजें आती है. इट इनकम्पासेस पर्सनल डेवलपमेंट, इट इनकम्पासेस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. So let us very quickly understand about access, equality and equity. Now accessibility is already there, जब स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी उनके लिए एक्सेसिबिलिटी तो है. ऐसे भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं who are physically disabled, तो भाई naturally the government is working very hard in terms of providing facilities for some such students. तो accessibility की बात तो अब हो गई है. Now we have to understand the difference between equality and equity. Naturally if you are kind of इंटीग्रेशन की जब हमने बात करी, सॉरी इंक्लूजन की हमने जब बात करी कि दैट इस तरह के स्टूडेंट्स को आपने क्लासरूम में तो बैठा दिया, बट यू आर काइंड ऑफ ट्रीटिंग देम एट पार विद अदर स्टूडेंट्स इन टर्म्स की लाइक भाई आपने रैम्प फैसिलिटीज दे दी, आपने व्हील चेयर फैसिलिटीज दे दी, आपने लिफ्ट की फैसिलिटी दे दी, बट आपने जो है करिकुलम में कोई डिफरेंस नहीं लेके आए. तो जब करिकुलम में डिफरेंस नहीं होगा या आपके टीचिंग स्टाइल में कोई फर्क नहीं हुआ, so then definitely some such students are going to lag behind. तो इस तरह हम इक्वालिटी की तो बात कर रहे हैं, क्यों इक्वालिटी इन टर्म्स की भाई we are giving them education and we are making them come to the classroom. That is the classroom is there where all the some such students are coming together, irrespective की जो है वो जेंडर के से फर्क है, कल्चरल उससे फर्क है या डिसेबिलिटी वाइज वो अलग है, तो हमने उनको क्लास में बिठा दिया, तो दैट इज इक्वालिटी. बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम इक्विटी. अब यदि हमने उनको जो है ब्लाइंड स्टूडेंट को नोट्स दे करके बोला कि अब आप इससे पढ़ लो, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प सम सच स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर बीइंग अ टीचर वी नीड टू provide something different to some such students so that they again are able to understand the content what the teacher is delivering in the classroom. हो सकता है कि आपने उनको कुछ ब्रेल में कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, या आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उनको स्टूडेंट्स को रिफर कर दिया, या आपने इंस्टीट्यूशन में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए सो दैट उसको जो है जो कंटेंट है जो रिटन फॉर्म में है उसको ओरल फॉर्म में करके
उस जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उसको वो ट्रांसलेट करके वो स्टूडेंट को हेल्प कर दे। तो यदि इस तरह की जब बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे, तभी तो इन ट्रू सेंस वी आर हेल्पिंग सम स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन सिस्टम। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आपने इक्वालिटी के चक्कर में उनको लाके खड़ा कर दिया, बट आपने उनकी अपनी लर्निंग स्टाइल में तो क्योंकि उनकी टीचिंग, आपकी टीचिंग स्टाइल में तो कोई आपने चेंज नहीं लाया। एज वी वर डिस्कसिंग इट इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स कि लर्नर की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। उनको जो है उनकी एबिलिटी इसलिए यहाँ पे अलग है क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, इसलिए हमको अपनी टीचिंग स्टाइल में भी फर्क लाना पड़ेगा। Then only we will be able to help some such students there in the classroom. We'll be able to do justice with some such students in the classroom. So equity is basically the quality of being fair and impartial. And equity recognizes that each person has different circumstances and allocates the exact resources and opportunities needed to reach an equal outcome. Because inclusive education is all about having professional, personal, and professional say excellence. We discussed about full personal, academic, and professional development of the students. So when we are saying that just say to promote full personal, academic, and professional development, so definitely हमको वो सारी opportunities उसको भी provide करनी है. Similar kind of opportunity we need to provide to some such students who maybe are disabled, who are visually impaired, और who are from transgender. यहाँ तक इसमें यदि इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें तो हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं वो जिसके कि पेरेंट्स ने कभी एजुकेशन लिया ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके मदर जो है प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही हैं, और उनके बच्चे को पता ही नहीं है कि हु आर द पेरेंट्स। अब वो बच्चे भी जब क्लास में आते हैं, इस तरह के भी बच्चे हमारे यहाँ एजुकेशन में आते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज देयर नीड, उनको क्या चाहिए। तो हम जब एजुकेशन में हम उनको लेके आए तो हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम एंड वी नीड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, एकेडमिक ग्रोथ। सबके लिए जो है टीचर्स का ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे टीचर्स हैव टू प्ले वेरी वाइटल रोल हियर, and we cannot leave anyone behind in the classroom. Why? Because it says the aims and objectives में ही लिखा है कि education is for everyone. It's not just for elite class of people or elite segment of the society. No, it is for everyone. It says that the protection of the rights. As I said, कि education जो है सभी का right है। क्यों just because कि वो prostitution करते हैं, उसकी मदर या उनके घर में कोई प्रोस्टिट्यूशन है और मतलब किसका वो जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि that child cannot come and take admission, or a boy or a girl cannot come and take education or be a part of higher education system. So basically वो सबके rights की protection की बात हो रही है inclusive education में. When we are talking about inclusive education, it is also about development of social consciousness, क्योंकि society में हर तरह के लोग होते हैं. And that's why we learn about this social consciousness we get only when some such students are also are part of our education system. Development of brotherhood to improve quality of education. जब हम quality of education की बात करते हैं तो definitely वहाँ पे हर sense में quality of education की बात हमें करनी है कि हम इसमें जो है जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं, उनका हमें बैकग्राउंड ही नहीं पता है, और हम सबको हम ये कहते हैं कि तभी हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अच्छी तभी होगी जब हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे और एक दूसरे के बारे में समझेंगे। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन जस्टिफिकेशन, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें कि क्यों जरूरी है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो हमें मालूम है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टैलेंट, डिसेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल ओरिजिन, द कॉलेजेस एंड क्लासरूम शुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव, and the needs of all students is to be met, and we need to help some such students to prepare them for the life. And teachers actually, they need to improve their professional skills. Society takes conscious decisions to operate according to social values. यहाँ पे educational point of view से हम बात करें तो inclusive education बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही बात करा कि
we need to actually be responsible for the academic, personal and professional competence of the students. So teachers का भी यहाँ role बहुत important है, और जिस भी तरह के students आ रहे हैं, हमें जो है अपनी प्रोफेशनल स्किल इसलिए जरूरी है इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, सबको हमें एट पार्ट ट्रीट करना है। एंड बेसिकली द आइडिया इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द लाइफ। हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आगे लाइफ, जो उनके फ्यूचर लाइफ के लिए हमें उनको प्रिपेयर करना है। सो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हर लोगों को अपने क्लास में लेके आए। और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि टीचर का एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स एंड स्कूल्स जो हैं, या स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, एक्चुअली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल विद सम सच स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है ऐसे बच्चों के लिए जो कि हमें मालूम है कि वो इस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। So that's why it is important to think from that perspective. That is what we that is why inclusive education is all the more important, क्योंकि उन बच्चों को कभी ऐसे inferiority complex नहीं तो develop हो जाएगी, वो they'll feel demotivated and they will drop out. So we need to hold hand with everyone and सबको हमको आगे की life के लिए prepare करना है. This is the role of a teacher actually. Sociological point of view से हम inclusive education की बात करें, so our society needs the academic institution values like wider social acceptance, peace and cooperation and harmony also. क्योंकि society में हम जब बात करते हैं एक harmonious society की, जब हम बात करते हैं तो हमें हर तरह के लोगों का जो है socially हमको उनको accept करना है और साथ में पीसफुल एक सोसाइटी की हम बात करते हैं और कोऑपरेशन एक दूसरे को देने की बात करते हैं। तो इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब हमें हर तरह के स्टूडेंट्स जब हमारे इंस्टीट्यूशंस में आएंगे, इस तरह के भी स्टूडेंट्स जो आएंगे जो कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम इस तरह के बच्चों को क्लास में एक साथ पढ़ाएंगे तो फिर क्या होता है कि फिर नेचुरली एक फाइनली जब ये बच्चे बाहर जाते हैं, व्हेन दे स्टेप आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, तो फाइनली उस एक सोसाइटी बनती है। और वो कैसी सोसाइटी बनती है जिसमें हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, पीस रखते हैं, एम्पैथी डेवलप होती है, कोऑपरेशन का एक डेवलपमेंट होता है। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास में हर तरह के बच्चे क्लासरूम में होंगे और हम एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को हेल्प करते हुए और हम एक अच्छे जो कहते हैं एक अच्छे समाज की जब हम कल्पना करते हैं, दैट एनईपी इज टॉकिंग अबाउट कि भाई एक हार्मोनियस एक ये होना चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी जब तक हम क्लास में ही इनको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तो देन हाउ कैन वी कैन थिंक अबाउट हैविंग सच अ हार्मोनियस सोसाइटी आउटसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। सो फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इफ यू सी इंक्लूसिव एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेग्रीगेटेड एजुकेशन से क्या होता है कि पढ़ तो वो भी रहे हैं बच्चे जो सोशियोइकोनॉमिक बैकग्राउंड के, जो लोअर सोशियोइकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या जो इनके प्रोस्टिट्यूशन जो के प्रोफेशन के जो जिनके बच्चे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो पढ़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है फिर अल्टीमेटली कि इससे क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ अ फियर. This actually teaches children to be fearful, ignorant, and it generates unnecessarily the prejudices. And only inclusive education can reduce these aspects and build friendships, respect, and understanding. Therefore, inclusive education, if you see from sociological point of view, that all kind of students should be brought together in the classroom. That's why inclusive education should be respected. From economic point of view, also, if you see, जैसे बोलते हैं कि in India alone, if you see, 10% of our population they are visually impaired. Okay, they are disabled. So out of 700 million disabled persons of world, 10% disabled students or population is only in India. तो उससे आपका यदि GDP देखें, gross development जो आपका GDP of the country, तो यदि आप unless we put some such 10% of population in the mainstream of education, तो क्या होगा, GDP तो हमेशा कम ही रहेगा ना। आप यदि ऐसे इनको भी उतना ही आप उनको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, हाउ डू आई से कि यदि आप इनको पढ़ा के लिखा के आप उनको इतना एबल बना देंगे, Hello, somebody wants to ask a question? Participants, you want to ask any question?
So the thing is, out of 700 million disabled persons of world, 10% disabled population are only residing in India. So what I'm trying to say is that इनकी भी capacity building करनी पड़ेगी disabled लोगों की. Otherwise क्या होगा कि overall GDP जो अपने country का है, it is going to be affected. So ये यदि 10% बच्चे जो हैं, जो ऐसे population के जो लोग हैं, यदि उनको deprive कर दें education से, so they will have no contribution in the development of the GDP of our country. So therefore, economic point of view से भी यदि हम देखें तो higher education is widely acknowledged as a key driver of economic growth and productivity. तो economic growth and productivity की बात करें, GDP की बात करें, तो inclusive education is very very important. But it should be cost effective. Inclusive education should be cost effective in nature. Otherwise, क्या होगा कि ये बच्चे कभी भी higher education के mainstream में नहीं आ पाएंगे. And the mainstream में नहीं आएंगे तो again there will be a disparity. So we cannot afford to do that, and that's why inclusive education is important. So humanitarian point of view से भी देखें तो हमने वही बात करी थी कि if we will put these students in a different college or a school, so what will happen? There will be a feeling of inferiority in some such students, and they will always feel, कि that हम में कुछ कमियां हैं. That's why we were not part of the mainstream of the education. Because segregation में जब हमने बात करी थी, segregation में क्या किया था कि they were in the classroom in the education system, but then still they were not put together. They were not being put together. उनको अलग से notes दे दिया, उनको अलग से material दे दिया, उनको अलग से पढ़ा दिया. That should not be the case. The thing is that they should be treated at par. So जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे, so definitely some कुछ inferiority complex रहेगी. There will be a lack of confidence, there will be lack of motivation and positive expectation there in the students. So therefore, from humanitarian point of view also, inclusive education is equally important. Now, democratic point of view से भी inclusive education important है. भाई हम तो democratic country में रहते हैं, हम democracy की बात कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई इन बच्चों को हमको अलग से पढ़ाना है. We'll put them in a separate school, we'll put them in a separate college, we'll put them in a separate classroom. No, it cannot be done like that. So to bring some such students in the mainstream of education, the fair, ethical and equitable measures need to be taken to avoid any kind of a discrimination with this kind of a student. Now, moving ahead, principles of inclusive education. What are the principles of inclusive education? It says that no discrimination should be there with the students. No discrimination should be there with any of the students who are abled, who are having no problem, and plus with some such students also जो थोड़े exceptional हैं, जो diversity जो लेके आ रहे हैं. किसी भी student के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव या discrimination नहीं होना है. This is what is the principle of inclusive education. We need to provide equal opportunity to everyone. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको सबको equal opportunity देनी है. Institution actually needs to adapt to the needs of some such students. ये जो responsibility है वो institution की भी है, administration की भी है, और teachers की भी equally उतनी responsibility है कि we need to adapt to the need of the students. Equal educational benefits for all students. This is again very important. सबको जो है equal educational benefit देना है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि personal, professional and academic development of all the students. So therefore, inclusive education का principle भी यही कहता है कि that equal educational benefit should be there for all the students. Students' views are listened and taken seriously, and individual differences between students are a source of richness. Again, it should not be considered as a liability and burden, but it should be considered as a source of richness and not a problem. Now, there are some certain barriers in inclusive education. And what are these barriers? Let us see one by one. सबसे पहले देखा जाए तो टीचर्स का जो एटीट्यूड है, वो सही नहीं है. जैसे मैंने बोला था आपसे कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस बीइंग अ टीचर कि हम कोई भी तरह का बच्चा क्लास में क्यों ना हो, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा हो, ठीक है, कोई मुस्लिम बच्चा हो, कोई फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा हो, हम खुद ही जो है उनमें हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. या हम केवल लो अचीवर्स बच्चे को हम निग्लेक्ट करते रहते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं आएगा, ये तो डफर है, विद दिस काइंड ऑफ अ प्री-नोशन, प्रेजुडिस व्हेन वी एंटर इनटू द क्लासरूम. हमारा एटीट्यूड ऐसे ही है कि भाई हमें अपना करिकुलम खत्म करना है. आई एम लीस्ट बॉदर्ड एज टू वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स और नॉट. अब यदि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, आपने कहा जी नोट्स ले लो, तो हमारे एटीट्यूड में ही कहीं यदि गड़बड़ है तो क्या करोगे? तो सबसे बड़ा बैरियर तो यही है
कि हमको जो है एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि एकेडमिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, और हमारा एटीट्यूड ही नहीं है कि हम बात क्या करेंगे उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की. सो द थिंग इज वी नीड टू ब्रिंग चेंज इनटू आवर एटीट्यूड. देन देयर आर रिजिड मेथड्स एंड रिजिड करिकुलम. हमने जैसे पहले ही बोला कि हमारा जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजी जो हम यूज करते हैं, उसमें भी हमें रिजिडिटी है कि आई एम मोर कंफर्टेबल यूजिंग पीपीटी, सो आई यूज only PPT for teaching learning in the classroom, or I'm only more comfortable in delivering lecture and distributing the notes. तो ये हमारे एंड पे भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत रिजिड है, हमारी करिकुलम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. So this is another barrier in terms of having inclusive education. Inaccessible environments में जैसे हमने बोला कि we are not having disabled friendly institutions. हमारे institutions में आप बातें करते हैं कोई जो हमारे कंट्री में देखें तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, एक दो चार इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको ऐसा पता चलेगा कि लिफ्ट नहीं लगी हुई है, व्हील चेयर्स नहीं है, इनके लिए अलग से वॉशरूम्स बनाते हैं, वो वॉशरूम्स ही नहीं है कि उनको जो है दे सो दैट दे फील वेलकम्ड, यू नो. उनकी बात कोई सुनता नहीं है, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं है, यू नो. जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है तो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराए थे इनके कहने पे कि भाई इनका जो भी कंटेंट है वो ट्रांसलेट करके और उसको उनको जो है मटेरियल जो है वो ट्रांसलेट करता था कंटेंट को, जो रिटन कंटेंट है दैट यूज्ड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ओरल कंटेंट. ओरल मतलब दे वर एबल टू listen to the content. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ नहीं खरीदते because they are very costly. So therefore the environment of the institution is again not friendly. So that's the reason many dropouts are there. Teachers and schools are not supportive. You know, जो institutions है वो supportive नहीं है. Parents को हम involve नहीं करते हैं. Parents are involved till the time they are in the school. स्कूल एजुकेशन में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन यहाँ ना पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग नहीं होती है. अनफॉर्चुनेटली इट गेट्स डिसकंटिन्यूड. बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका बच्चा किस तरह से ज्यादा अच्छा सीख सकता है, तो फिर उसको अपने पेडागोजी में इम्बाइब कर लेते हैं, मतलब इंटीग्रेट करते हैं और उसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सो दैट दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट, they do not get demotivated and they drop out. Then there's a lack of teaching aids and equipment in the institution, and of course poor quality training. हमारी training इस तरह से नहीं है, we are not that much sensitized, you know. हमारी training ही proper नहीं है, तो ये सारे जो हैं barriers हैं एक inclusive education के लिए. Again the same set of thing, lack of physical facilities, lack of funds, lack of trained teachers, social discrimination, emotional problems and educational problems. Now moving ahead, approaches to promote access and inclusion in higher education. तो यदि गवर्नमेंट की तरफ से हम यदि बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से आप यदि बात करना वो करेंगे कि भाई व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रमोट यू नो इंक्लूसिवनेस इन हायर एजुकेशन. तो बहुत सारे ऐसे कैंपसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट को जो है दैट एवरी स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ द कैंपस एंड दे कैन फॉर्म पीयर ग्रुप्स एंड एक्टिवली एंड पीसफुली एंगेज इन सोशियो कल्चरल लाइफ. एक चीज यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना क्लासरूम एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव नहीं रहता, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप उनको कोई ग्रुप एक्टिविटीज या कल्चरल एक्टिविटीज होती है तब हम उसको, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको यदि एक पीयर ग्रुप में शामिल किया जाए तो वहां पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं and they can be feel welcomed, you know, in some such groups. So you know they will feel more encouraged and motivated. Otherwise classroom में तो कहीं ना कहीं वो पीछे होते जाते हैं और जब वो पीछे होते हैं तो फिर डीमोटिवेट होते हैं तो ड्रॉप आउट होता है. तो ये जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टीचर, being part of the education system, कि that उनको जो है we need to make them feel welcomed in the campus. and वो हम कैसे कर सकते हैं? क्लासरूम में भी टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को अपनी डिफरेंट पेडागोजीज अडॉप्ट करनी होगी, हमें खुद को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए. प्लस इस तरह के पीयर ग्रुप फॉर्म कीजिए जिसमें हाई अचीवर लो अचीवर को बता सकता है कुछ भी,
जिसको मेंटर मेंटी इस तरह से ना देखिए, आप यदि मेंटर मेंटी ऐसा देखना चाहें तो फॉरेन कंट्रीज में मेंटर मेंटी ऐसा होता है कि जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स होते हैं वो लो अचीवर स्टूडेंट्स के साथ में दे आर गिवन द टास्क टू कंप्लीट, तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, सो दे इंटरेक्ट अमंगस्ट ईच अदर। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड दे हेल्प आउट ईच अदर। तो इस तरह से भी उनको आप इनकरेज कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को। एंड एक्टिवली एंड पीसफुली एंगेज इन सोशियो कल्चरल लाइफ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, teachers and administrators to ensure that the campus is inclusive in its day-to-day functioning. That's why we are talking, especially अब NEP जब होती है तो NEP में भी ये इनके लिए additional points हैं जो इन institutions के लिए पूछा जाता है कि whether you are having ramp facilities or not, whether you are having a separate toilets for some such disabled students, whether you are having lift there in the institution, whether you are having wheelchairs for some such disabled students. So ये सारी चीजें जो होती हैं basically to make campus more inclusive in nature. इसीलिए फिर वो students को कभी ऐसा नहीं feel होगा कि they are being left out because of whatever reasons. Approaches to achieve access and inclusion can be categorized as admission phase and post admission phase. So admission phase में भी क्या होता है कि they are having seats reserved. जो डिसेबल्ड ग्रुप के लिए कुछ आपके इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज में सीट्स रहती हैं। सिमिलरली सोशियो इकोनॉमिक लोअर जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस पे बोला है कि यू हैव टू फॉलो दीज पॉलिसीज। एंड रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, कोटा सिस्टम होता है। And why? Because it reflects the values of democracy, equality and social justice. Therefore, the seats are reserved, for blind students, for physically disabled students, for poor, socioeconomic poor students. Minority के लिए भी कुछ seats reserved होती हैं. Minority institutions are also there. So reservation policy ensures a certain share of seats occupied by students belonging to underrepresented groups. And reservation policy provides diversity in the student population in each of the higher education institution. Now there are some incentive schemes to facilitate access. Some incentives are also there. अब ये बच्चे आ तो जाते हैं हायर एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, so अब उसके बाद क्या? If after that, because of the reservation policy, they take admission, but then thereafter what? So some incentive schemes are also provided to these students to overcome entry-level barriers at the stage of admission. So they are provided with the scholarships, some free ships, उनकी फीस वेव ऑफ हो जाती हैं। देन उनके जो फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं वो उनको जब स्कॉलरशिप्स मिलती है तो उस फाइनेंशियल बैरियर्स को थ्रू स्कॉलरशिप्स आर बीइंग मेट आउट, एंड जब स्टूडेंट्स को एक फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है या उनकी फीस वेव ऑफ हो जाती है तो उनके जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is one of the significant sources for students from underprivileged groups. State and public sector organizations also provide scholarship schemes. Then incentive schemes to facilitate access. इनके लिए जब ये आ जाते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में तो इनके लिए हॉस्टल्स भी बनाए जाते हैं। स्पेशली ऐसे ग्रुप के लिए होता है जो SC/ST ग्रुप के लिए गवर्नमेंट अगेन इज गिविंग सम एक्स्ट्रा फंड्स टू द इंस्टीट्यूशंस, कि उनके लिए अलग से आप सेपरेट हॉस्टल्स बनाइए और उनकी फैसिलिटीज, जैसे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है तो उनके लिए उस तरह के स्पेशली यू नीड टू हैव वॉशरूम और टॉयलेट फैसिलिटी जिसको so that they can access these toilet there in the institution and in the hostel, comfortably, and so they do not feel left out and they do not drop out just because they feel uncomfortable. So इसलिए क्या होता है कि उनके लिए hostels की भी facilities जो हैं provide की जाती हैं, and उनको government is giving lot of funds to the colleges and universities. If in case some college or institution wants to develop a hostel for some such students, so special hostels are built on campuses using earmarked funds for the SCs and STs. Then institutional policies to promote diversity. आप यदि इस तरह से देखना चाहे, मैंने I gave you the example of JNU में जितनी भी buildings मैंने देखी हैं वहाँ सभी buildings में they are having ramps, they are having lift. तो इससे क्या आपको लगता है कि मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वहाँ पे इस तरह की चीजें सोची गई हैं। अब आप कहेंगे कि JNU में तो फंड्स की देयर इज नो डेarth ऑफ फंड्स, बट आई थिंक यदि आप अपने यहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज देना चाहें एंड इफ यू अप्रोच द गवर्नमेंट
that you want to develop these facilities. So I don't think government will deny you. They will give you especially some funds, so that you can install lift for some such students. You can build ramps for some such students, and you can buy some software for some visually impaired students. तो आपको पता चलेगा कि मतलब इस तरह से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट कर सकती है. आईएम की बात करें तो आईएम्स में भी आई नो सम ऑफ द आईएम्स. एक तो मेरे को मालूम है बैंगलोर का है आईएम, जहाँ पे उन्होंने फीमेल्स के लिए सीट्स रिजर्व की हैं ताकि उनके कट ऑफ पॉइंट से भी 2 नंबर यदि कम भी हैं तो वो दे गिव एडमिशन टू द वुमेन स्टूडेंट्स, सो दैट in order to have gender parity, gender diversity जो हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत कम लड़कियां हैं जो आईएम के कैट एग्जाम्स में उनको जो इतने नंबर मिलते हैं, जब यदि नंबर कम मिलते हैं तो फिर उनको एडमिशन नहीं होता. So therefore they are kind of keeping seats reserved for the female candidates in their institution. So this is how they are meeting this diversity, and and they are promoting the inclusive education. Similarly, IITs के पास में they have a special preparatory programs. Institute provides admission to SC and SC students जिनका की जो मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स से कम रहता है, लेकिन क्या कर रहे हैं, these students are admitted to preparatory courses for 1 year. जैसे 2 सेमेस्टर में उनको जो है पढ़ाते हैं, एक उस तरह से उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ में. एंड अपॉन कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर प्रिपरेटरी कोर्स, देन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर यूजी प्रोग्राम्स. तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि वो फिर कहीं ना कहीं दे फील कि दैट दे आर लैगिंग बिहाइंड, एंड फिर वो क्या करते हैं, देयर इज अ ड्रॉप आउट भी होता है. देन द स्टूडेंट्स दे कमिट सुसाइड. आईआईटीज में तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि एवरी ईयर स्टूडेंट्स दे हु आर नॉट एबल टू कीप एट पार विद अदर स्टूडेंट्स, whenever they feel that they are lagging behind, they don't get the kind of support they want from the institution, so they commit suicide. या तो ड्रॉप आउट कर लेते हैं या फिर they commit suicide. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तो इसलिए जो है उनको प्रिपरेटरी कोर्सेज में डाला जाता है और उनको बराबर से बाकी स्टूडेंट के समय के साथ में बराबर करके, एंड देन दे आर पुट इन द रेगुलर क्लासरूम. Then approaches to promote access and inclusive. Post admission क्या हो रहा है, पोस्ट एडमिशन में इंक्लूसिवनेस कैसे हो रही है कि दे आर गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, जिसको अर्न व्हाइल यू लर्न जो स्कीम्स हैं, जिसमें बच्चे थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं. दे आर एबल टू अर्न सम काइंड ऑफ अ पॉकेट मनी, और या तो फिर उनकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है. उनको जो है बुक बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में बुक बैंक फैसिलिटीज सब हमेशा हर जगह पे मिल जाएगी, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू प्रोक्योर बुक्स बिकॉज इट्स बीइंग एक्सपेंसिव, तो ऐसे बहुत सारे उनको बुक बैंक फैसिलिटीज हैं जहाँ पे इन बच्चों को साल भर के लिए बुक्स जो हैं उनको इशू की जाती हैं, so that they can study, and they are given opportunities to earn during study program, जिसको मैंने earn while you learn वाली जो स्कीम है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में है. They are also provided with the remedial programs. जो बच्चे थोड़े लो अचीवर्स हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस होती हैं. देन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जैसे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस से आते हैं, जो जहाँ पे इंग्लिश में ही ज्यादा करके क्लासेस होती हैं, सो दे आर गिवन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ लैंग्वेज लैब्स. They are also provided with the facility of audio video learning. Book banks are there. So some such facilities are provided by the institutions to promote inclusion in higher education. Then teaching strategies जो बहुत जरूरी है. I will just simply touch this very quickly. So teaching strategies कैसी होनी चाहिए? अब आप inclusive education की बात कर रहे हैं, तो what kind of a teaching strategies we should adopt being a teacher? तो हमें hand holding की जो हम बात कर रहे हैं कि we need to go for cooperative learning. हम केवल कुछ बच्चों को स्टूडेंट्स को अपना स्टूडेंट्स ना बना के टच वो पढ़ाते हुए हम जो है पीयर ग्रुप लर्निंग की बात करें, पीयर ग्रुप टीचिंग लर्निंग की बात करें, जहाँ पे ग्रुप्स बना के उनको पढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे को हेल्प किया जा सकता है. पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू मल्टी सेंसरिंग टीचिंग वी शुड अडॉप्ट, जस्ट नॉट बाय ओनली लेक्चर मेथड या केवल पीपीटी से या नोट से. नो, वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट मल्टी सेंसरी टीचिंग सो दैट वी कैन रीच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम who have taken admission in the higher education system. This is nothing but some very motivational kind of
quotes I really liked, so therefore I'm sharing it with you. That it says, Abdul J. Kalam ने जो बहुत ही सुंदर एक quote दिया कि when learning is purposeful, creativity blossom, and when creativity blossoms, thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is fully lit, and when knowledge is fully lit, economic flourishes. Ultimately, learning का purpose तो यही है कि जो है economic flourish हो और लोगों की thinking broaden हो, knowledge अच्छे से आए. तो इसके लिए जो है सबको साथ में बैठ के पढ़ना है और तभी हम फिर कंट्री की इकोनॉमी की बात अच्छी मतलब फ्लरिशिंग की बात कर सकते हैं. स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छा कोट दिया कि वी हैव टू टॉलरेट द डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड, शुड नॉट बी considered as a burden and liability. Inclusive education, it helps create cohesive societies. जितना लोग एक inclusive education होगा, उतनी cohesive society का development होगा, उतनी harmonious society का development होगा, उतने ही peaceful societies का development होगा. जो समाज का जो विकास है, जो मोदी जी हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सबका साथ सबका विकास. So ये inclusive education का यही मोटो है, यही पर्पस है कि सबको पढ़ना है, सबको साथ आना है और सबका साथ में डेवलपमेंट होना है. So this is about diversity is our strength, equity is our commitment, and inclusion is our goal. So in nutshell, this was about equity and inclusiveness, and when everyone is included, everyone wins. So this is all from my end. If in case you have anything to ask, I'll be happy to address it. Participants? So any questions from the side of the participants? Any observation, any question you want to raise? Think they're going to sleep or what? Was it too much? Was it too heavy? No, it wasn't. It was very easy and very, very easy to understand and grasp the things. But then the participants, but they put it in the chat box. Problem is, they put it in the chat box. They believe in writing these days. Oh, very nice, informative. वो तो मानो सब आपको अच्छे से बता देते हैं. But ये किसी को कुछ question वगैरह है या कुछ अपने observation भी बोलना चाहे तो please you can tell me how you are kind of promoting inclusive education in your institution or through your institution. How what this thing you are taking, measures you are taking to promote this inclusive education. आपके यहाँ भी तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा. So let us hear from your side also. I think I have already taken 5 minutes extra, but if in case somebody wants to share as to how they are promoting inclusive education in their institution or through their institution, I would like to hear it, because हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, हम उसको ऐसा कैसे improve कर सकते हैं, how what facilities we can also include it into our institution, to make our institution more inclusive, to have more inclusiveness in our institution. तो आप लोग वो यदि शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो I'll be happy to hear that. No, I don't know whether they are around. हमने तो इनके चेहरे ही नहीं देखे. Anyways, I just want to switch on your cameras. So inclusive education is actually basically is nothing but to respond. Thank you, Aarti ji, Naresh ji, धन्यवाद. नजरुल जी. नहीं, पानी है. आपको भी इनको पीछे से बोलना पड़ता है जैसे मुझे बोलना पड़ता है. खैर एनीवे, आई थिंक हमारे यहाँ ज्यादा लोग थोड़े हैं तो they keep their cameras on. Yes. So thank you to all the participants for the patient listening. And in case if you don't have anything to ask, I think I can quit and I have to say take care of NEP program in my center as well. Yes, Nazrul ji, we invite you for the formal vote of thanks. I think he's not around. Let it be. I am thanking my own self, ma'am. Don't worry. We are all teachers. We all are teachers. We don't have to really say we go into this kind of formality. But thank you once again for providing this wonderful opportunity to me to interact with the participants of your center.
So We are now also I very thankful to you for sparing your very valuable time and for such an interactive session and very important theme, which we all need to understand as a part of the higher educational institution. Even though if it was not only NEP, but still, I think all Otherwise higher also. educational institutions also Otherwise need to also. take into consideration the inclusive education as well as this for the holistic development of the children. That is very much required. And this session was really very nice, very informative, full of examples to learn from and a lot of practices that we can adopt in our educational institution. We are really thankful on the behalf of all the participants and my own self and my department. I extend the heartiest thanks to you for being with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so very much. See you soon in there in my center. Yes. Thank you, Ji. And we have with us our next learned speaker, Professor Mahesh and Jivani Ji, who is from Saurashtra University. We welcome you, sir. Namaskar. बहुत बहुत स्वागत है आपका. अभिनंदन.